अभी Hello everyone, welcome to my video lecture on the subject Team Building and Leadership. I am Dr. Mona Sahai, a faculty of the Management Department of IPM Ghaziabad. I take up subjects of organizational behavior and human resource management, and the subject I am dealing with today is Team Building and Leadership. This is for the course of BBA third semester. So this is also known as TBL in short. TBL is Team Building and Leadership. So when you go through the syllabus of BBA third semester, you will find this subject, team building and leadership, which we can say is also a part of organizational behavior, which we have studied, the students have studied in BBA first year also. So first of all, we need to start with the definition and meaning of team. For team building, of course, we should know what team means. Now, as we can see in the slide, in organization, employees work in regular small groups called team, where work is interdependent. They seek to develop a cooperative state called teamwork. Another definition, so the definition says a team is a small number of people with complementary skills who are committed to a common purpose, set of performance goals, and approach for which they hold themselves mutually accountable. And the third definition here, a team is a group whose members influence one another towards the accomplishment of specified objectives. Now, what do all these definitions say? That for a team, first of all, we need to have at least two people. So this is necessarily a group of two people at least, or in other words, two or more people. And another point important is that they have a common goal to accomplish. So there is a common objective or goal to accomplish. There needs to be a minimum of two people. So we can have two or more people. And they are working together in a complementary manner. I mean, they complement each other, and they are also working together for a specific objective, and they are working for the accomplishment of this common goal. So that is about team. Now there is another term in our syllabus, that is group. A group again is, we can say at least we need two people, two or more people for a group. But then what are the differences between a team and a group? So let me point out the differences between a group and a team. अब आप देख सकते हैं इस स्लाइड में ग्रुप्स एंड टीम्स के बीच में डिफरेंसेस. तो क्या सबसे पहले क्या है ग्रुप्स एंड टीम्स के बीच में डिफरेंसेस. जो हमारे ग्रुप्स हैं उसमें क्या है कि सिनर्जी नहीं होती है. सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस यही है ग्रुप्स एंड टीम्स के बीच में. लेकिन जब हम टीम्स की बात करते हैं तो इसमें सिनर्जी होती है. अब इसके लिए पहले हमें समझना है कि सिनर्जी होती क्या है. अब दो लोग अगर अलग अलग काम कर रहे हैं, मान लीजिए एक का नाम राम है, एक का नाम सीता है, ठीक है. दो लोग अलग अलग काम कर रहे हैं. अब राम का जो कंट्रीब्यूशन है, अगर हम कहें कि एक दिन में 500 रुपीज के वर्थ का उसका कंट्रीब्यूशन हो रहा है, और अगर सीता का कंट्रीब्यूशन हम कहें कि 400 रुपीज वर्थ का हो रहा है एक दिन में, तो ठीक है, राम का कंट्रीब्यूशन 500 रुपीज और सीता का कंट्रीब्यूशन 400 रुपीज, तो ये दोनों मिला करके 900 हो गया, 900 रुपए हो गए. अब जब हम टीम की बात करते हैं, ये दोनों जब अलग अलग काम कर रहे थे तो उनका कंट्रीब्यूशन 900 रुपीज के बराबर था. अब जब वो मिल करके एक टीम में काम करेंगे तो उनका जो मिल करके कंट्रीब्यूशन होगा वो 900 रुपीज से बढ़ के होगा. मतलब अलग अलग जो इनका कंट्रीब्यूशन है उसको ऐड करके इनका जो कंट्रीब्यूशन बन रहा था 900 रुपीज,
उससे कहीं ज़्यादा होगा जब वो मिल करके एक टीम फॉर्म करते हैं। तो इसीलिए एक टीम हमेशा ही बेनिफिशियल है, हमेशा ही वो लाभप्रद है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब हम काम करते हैं मिल करके तो हमारे रिटर्न्स इन सिंपल वर्ड्स और ज़्यादा होंगे बनिस्बत इसके कि जब हम अलग अलग काम करते थे। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है ग्रुप्स और टीम्स के बीच में, कि टीम्स में जब हम बात करते हैं टीम्स की तो यहाँ पे सिनर्जी वर्क कर रहा है जो कि ग्रुप्स में नहीं कर रहा है। तो ग्रुप्स में हम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस की बात कर रहे हैं और टीम में हम टुगेदर जो हमारी कंट्रीब्यूशन होती है उसकी बात करते हैं, हम सिनर्जी की बात करते हैं। दूसरी चीज़ है, जब हम टीम्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है टीम्स की बात में, कि हम टीम मेंबर्स से किस तरीके से शेयर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे है टीम्स में, और कलेक्टिव परफॉर्मेंस होती है यहाँ पे। दूसरी चीज है कि जो अकाउंटेबिलिटी है सिनर्जी में वो इंडिविजुअल एज वेल एज म्यूचुअल होती है, लेकिन ग्रुप्स में सिर्फ इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी ही होती है। मतलब जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंडिविजुअल होती है ग्रुप्स में, लेकिन जब हम टीम की बात करते हैं तो इंडिविजुअल के साथ साथ म्यूचुअल, और हम ये कह सकते हैं कि पूरा टीम लेवल पे हमारी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि हमने एज अ टीम क्या परफॉर्म किया है, क्या अचीव किया है। और जो हमारे स्किल्स होते हैं टीम्स में वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। मतलब अगर मैं किसी एक चीज़ में, अगर जैसे राम सीता का एग्जाम्पल था, अगर राम आईटी स्किल्स में बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा है, और सीता जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत अच्छी है, तो दोनों मिलकर के एक अच्छा टीम बनाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एक में एक स्किल की एक्सपर्टीज ज़्यादा है और दूसरे में दूसरे स्किल की एक्सपर्टीज बहुत ज़्यादा है, तो ये दोनों मिलकर के एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और एक अच्छा टीम बनाते हैं। लेकिन जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो यहाँ पे ये वाली चीज़ नहीं होती है कि स्किल्स जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। यहाँ पे हर किसी को इंडिविजुअल स्किल्स जो हैं वो क्या है ये मायने रखती है, और ये रैंडम होते हैं और ये वैरिड होते हैं, काफ़ी वैरी करेंगे ऑफ कोर्स ग्रुप मेंबर्स के स्किल्स क्या है। तो ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं इसमें ये सारे पॉइंट्स मेंशन्ड हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि वर्क ग्रुप्स किस तरीके से टीम्स से डिफरेंट होते हैं। और यहाँ पे साथ में टाइप्स ऑफ टीम्स की अब हम बात करें, अब जब हमने देख लिया कि ग्रुप्स और टीम्स में डिफरेंस क्या है, तो हम टाइप्स ऑफ टीम्स की बात करते हैं। जो हमारा सिलेबस है बीबीए थर्ड सेमेस्टर का टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप का, उसमें भी ये मेंशन है कि टाइप्स ऑफ टीम्स के अंदर भी हमें कौन कौन से टाइप्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पे आप स्लाइड पे देख सकते हैं। तो फर्स्ट वन ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स, दूसरा है सेल्फ मैनेज्ड टीम्स, तीसरा है क्रॉस फंक्शनल टीम्स, और चौथा है वर्चुअल टीम्स। ठीक है। अब अगर हमें कोई भी टर्म को समझना है तो सबसे पहले हमें टर्म के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि ये टर्म है क्या, उसके वर्ड्स को हम ब्रेक कर लें आपस में और हर एक वर्ड को समझने की कोशिश करें कि इसका मतलब क्या होता है, तो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं उस टर्म को। तो जैसे यहाँ पे है पहला टाइप ऑफ टीम प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम, तो हम इस प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम, ये जो हमें वर्ड दिख रहा है, इसको अगर हम ब्रेक करते हैं इसके तीन सिंपल पार्ट्स में, प्रॉब्लम सॉल्विंग और टीम्स, तो हमें समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स का मतलब क्या है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो टीम होती है उसको हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम। बहुत सिंपल है। तो ऐसी टीम एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेकर उसको सॉल्व करने के लिए बनी होती है, और स्पेशली इन टीम्स को बनाया जाता है स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट काफ़ी बढ़ रहा है, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है या ओवरऑल जो भी कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ रहा है, तो उनकी एक कॉस्ट कंट्रोल टीम हो सकता है कि वो बनाए। और ये काफ़ी जगह हमें देखने को भी मिलती है ऑर्गेनाइजेशंस में कि कॉस्ट कंट्रोल टीम्स होती हैं, तो उनका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, उनका एक स्पेसिफिक पर्पस है कॉस्ट को कंट्रोल करना, और इसके जो टीम मेंबर्स हैं ये मिल करके इसी एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम करेंगे कि हम मिलकर कॉस्ट को किस तरीके से कंट्रोल करें। इसके ऊपर वो कोशिश करते हैं कि वो एक कंसेंसस के ऊपर आ जाए, मतलब सारे टीम मेंबर्स जो हैं अग्री कर जाएं एक ही पॉइंट्स पर,
और यही जो कंसेंसस होगा ये इनके रिकमेंडेशंस होते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये जो रिकमेंडेशंस लेकर के आएंगे, कॉस्ट को कंट्रोल करने का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो कॉस्ट को कंट्रोल कैसे किया जाए इसके लिए रिकमेंडेशंस लेके आएंगे, मैनेजमेंट को रिकमेंडेशंस देंगे और फिर मैनेजमेंट के ऊपर होता है कि ये उन रिकमेंडेशंस में कुछ चेंजेस के साथ उसको इम्प्लीमेंट करें या एज इट इज इम्प्लीमेंट करें, जैसा भी उन्हें ठीक लगता है। उसके बाद हम आते हैं सेल्फ मैनेज्ड टीम्स पर। तो जैसे मैंने कहा कि बस हम इस टर्म को ब्रेक कर लें, सेल्फ मैनेज्ड टीम्स। सेल्फ मैनेज्ड मतलब जो खुद से मैनेज होता है, मतलब किसी और की भी ज़रूरत नहीं होती है अपने आप को मैनेज करने के लिए। सो दैट इज सेल्फ मैनेज्ड टीम्स, मतलब ये खुद से मैनेज हो रहे हैं, दूसरे की ज़्यादा इंटरवेंशन, कंट्रोल, मॉनिटरिंग वगैरह की उन्हें ज़रूरत नहीं होती है। मतलब मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट इनकी ज़्यादा कुछ मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग या इंटरवेंशन नहीं कर रहा है, ये खुद ही अपने वर्किंग को अच्छी तरीके से संभाल लेते हैं। ये है सेल्फ मैनेज टीम्स। तो इनके ऊपर किसी और का फिर इन्फ्लुएंस नहीं है, किसी और का कंट्रोल नहीं है, और अगर होता भी है तो वो काफ़ी मिनिमल सा होता है। अब जो एक्टिविटीज़ ये कॉमनली डेलीगेट करते हैं, क्योंकि ये खुद ही अपने टीम के वर्किंग को पूरा मैनेज करते हैं, तो इनमें अच्छे से डेलीगेशन होती है एक्टिविटीज़ की। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं इम्पॉर्टेंट जो उन्हें डेलीगेट करना होता है। एग्जाम्पल, सेटिंग ऑफ वर्क शेड्यूल, जैसा आप देख भी सकते हैं स्लाइड्स पे। सेटिंग ऑफ वर्क शेड्यूल मतलब कौन कौन सा काम किस किस टाइम पे खत्म होगा, क्या डेडलाइंस उनकी होगी, इसके डिटेल्स वो चॉक आउट करते हैं। एस्टैब्लिशिंग प्लांट इंफ्रास्ट्रक्चर, determining the level of increase in the salary and even performance appraisal। तो ये सारी चीज़ें ये सेल्फ मैनेज करते हैं। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं स्कॉर्पियो का। महिंद्रा एंड महिंद्रा की हम बात करें, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, तो इसका इंटीग्रेटेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, जिसको हम शॉर्ट में ITAM कहते हैं, तो इस डिपार्टमेंट ने डिज़ाइन किया था स्कॉर्पियो को, जो कि एक SUV है, और ये काफ़ी पॉपुलर हुआ। तो इसका जो क्रेडिट जाता है हम कह सकते हैं सेल्फ मैनेज्ड वर्क टीम्स को ही जाता है। सेल्फ मैनेज्ड टीम का ही ये कंट्रीब्यूशन था कि उन्होंने स्कॉर्पियो को डिज़ाइन करा, और ये टीम थी लगभग 120 लोगों की जिन्होंने एक साथ काम किया था। एंड वी ऑल नो दैट इट हैज़ बीन अ गेम चेंजर इन द SUV मार्केट इन इंडिया। द नेक्स्ट टाइप इज क्रॉस फंक्शनल टीम्स। अगेन हम इस टॉपिक को ही देखकर समझ सकते हैं। क्रॉस फंक्शनल मतलब अलग अलग फंक्शनल एरियाज जब एक साथ मिल रहे हैं और फिर वो टीम बनते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्रॉस फंक्शनल टीम। अब अलग अलग फंक्शनल एरियाज यहाँ पे मैनेजमेंट में क्या होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं मार्केटिंग फंक्शन हो सकता है, प्रोडक्शन, सेल्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल। तो ये सब अलग अलग फंक्शनल एरियाज हैं, जो सब जब अलग अलग फंक्शनल एरियाज इन सब डिपार्टमेंट से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स इनके एक साथ मिल जाते हैं और एक टीम बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्रॉस फंक्शनल टीम। मतलब ऐसे टीम में कुछ लोग प्रोडक्शन से भी हो सकते हैं, कुछ मार्केटिंग से हो सकते हैं, कुछ सेल्स से हो सकते हैं, कुछ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से हो सकते हैं, कुछ क्वालिटी कंट्रोल से हो सकते हैं, और तब एक टीम बनेगी तो हम उसे कहेंगे क्रॉस फंक्शनल टीम। तो ऐसे क्रॉस फंक्शनल टीम्स भी बहुत पॉपुलर हैं हमारे कॉर्पोरेट में, इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलर है। अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो कई सारे कंपनीज हैं, अगर हम एग्जांपल्स ले सकते हैं, टोयोटा, होंडा, टाटा, फोर्ड, इन सब में क्रॉस फंक्शनल टीम्स रेगुलरली काम करते हैं। इवन IBM जैसी कंपनीज का हम एग्जांपल ले सकते हैं, LG, स्टारबक्स, इन सभी में क्रॉस फंक्शनल टीम बहुत अच्छे से काम करते हैं। अगर हम LG की बात करें तो यहाँ पे पिज्ज़ा मीटिंग्स होती हैं, लोग पिज्ज़ा भी खाते हैं और एक दूसरे से अपने आइडिया शेयर करते हैं। डिफरेंट फंक्शनल एरियाज के लोग एक साथ मिलते हैं और उनकी डिस्कशंस होती हैं, एंड दे कम अप विद वेरी क्रिएटिव आइडियाज एंड क्रिएटिव टिप्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज वर्चुअल टीम। वर्चुअल टीम क्या है हम जानते ही हैं, हम इससे ज़्यादातर लोग इंटरनेट की मदद से जब टीम मेंबर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं
तो उसको हम कहते हैं वर्चुअल टीम्स। तो यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर जैसे हम लोग कनेक्टेड होते हैं ऑनलाइन, इस तरीके से जब हम ऑनलाइन कनेक्टेड होते हैं, टीम्स कनेक्टेड होती हैं और फिर वो साथ मिल करके डिस्कस करती हैं कई सारे इश्यूज को, चैलेंजेस को, और साथ में काम करते हैं, क्रिएटिव आइडियाज शेयर करते हैं। तो ऐसे टीम्स को हम कहते हैं वर्चुअल टीम्स। और आजकल स्पेशली कोविड के टाइम पे ऐसे टीम्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई हैं, और इसके बाद भी कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों को कैरी कर रहे हैं। मतलब हमें इसमें काफ़ी कन्वीनियंस नज़र आई, काफ़ी एडवांटेजेस नज़र आए, तो इसीलिए हम अभी भी इसको फॉलो करते हैं। और कुछ बेनिफिट्स आप देख सकते हैं वर्चुअल टीम्स के क्या क्या हैं। लाइक लो कॉस्ट टू द कंपनी, जो फिजिकल स्पेस है आपको बहुत ज़्यादा देनी नहीं होती है एम्प्लॉयज़ को, तो कंपनी के लिए भी ये लो कॉस्ट है। कॉस्ट कर्टेल होती है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती अगर हम कंपेयर करें ट्रेडिशनल टीम्स से। तो फिर दूसरी बहुत बड़ा एडवांटेज इसमें ये है कि पूरी दुनिया से के लोगों से हम कनेक्ट हो सकते हैं, जो कि अदरवाइज बहुत मुश्किल है और बहुत खर्चीला भी हो सकता है कई बार पॉसिबल ना भी हो, लेकिन जब वर्चुअल टीम्स होती हैं तो ये इसे पॉसिबल बना देती है। तीसरी चीज़ है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है। जब हम बहुत ज़्यादा कम्यूटिंग में समय नहीं दे रहे हैं, हमारी एनर्जी, हमारे रिसोर्सेज नहीं जा रहे हैं, तो हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाते हैं। और फोर्थ पॉइंट है 24 आवर कंपनी सर्विस। मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑनलाइन कनेक्टेड होकर हमेशा ही कंपनी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट टीम्स टुडे। थैंक यू, सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। Yeah.